میں آپ کی سلامتی ہو. This is our last and final session in the prophecies of Daniel. First of all, thank you so much for joining me through this Bible study. I hope it was a blessing. And if it was, this is for the first time I'm going to ask you to share these videos to others as well, so that many of us has that simple basics for unity and maturity in the days ahead. کیونکہ ان چیزوں کی ڈیفینیشنس کا آئیڈیا ہونا اور سمجھنا it's very important. یونٹی اور میچورٹی ناٹ فار دا سیک آف اٹ، بلکہ ہم خداوند میں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے سب یونیفائڈ ہوں. ایک سائیڈ نوٹ کے طور پہ سائمن سینک سیز کہ اسٹارٹ ود وائی، اور بہت سے گریٹ لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ کویسچن ایوری تھنگ. آسکنگ گڈ کویسچنز از امپورٹنٹ. اسپرچل لینس سے اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر بہت سی چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں وہ بلری یا دھندلی نہیں نظر آتی، بہت کلیئرٹی ہمیں مل جاتی ہے. اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اسپرچل لینسز ہمیشہ ہماری آنکھوں پہ لگے رہیں، کیونکہ سنفلنس اور ایولنس بہت کیجول سی بات ہوتی جا رہی ہے، جس طرح کہ نوح کے دور میں تھی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں جو ہم نے ابھی تک سیکھا. پہلا کہ اینٹی کرائسٹ کوئی رائل اسٹاک نہیں ہونے والا، دھوکے سے آئے گا، کولیشن بنائے گا، اور یہ ایک ملٹری کیمپین ہوگی. پھر ہم لوگوں نے غور کیا تھا کہ 2 میجر راؤنڈز میں یہ ہونے والا ہے. فرسٹ ون جو ہے وہ مڈل ایسٹ سینٹرک ہے، اور جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ گلوبل لیول پہ ہوگا، اور اس کے بیچ میں اسمالر کیمپینز چلتی رہیں گی. اور اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا جو اہل دانش ہیں وہ نیشنز کو خداوند کے لوگوں کے لیے تقویت کا باعث ہوں گے. اور میری کوشش بھی یہی تھی ان ویڈیوز کے ذریعے کہ ہم نارملائز کر سکیں اس اینڈ ٹائمز کے ٹاپک کو، اینٹی کرائسٹ کے ٹاپک کو، تاکہ ہماری ایک فنکشنل سی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جائے. اور اینڈ ٹائمز کو لے کے جو ببلیکل پروفیسیز ہیں ان کو ہم لوگ اس ببلیکل ایسکیٹالوجی کو اچھے سے سمجھ پائیں. تو آئیے چیپٹر 12 میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد اور ابلیس کو شکست دینے کے بعد کیا حالات ہوں گے. چیپٹر 12 ورس 1 and 2. اور اس وقت مکائل مقرر فرشتہ جو تیری قوم کے فرزند کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسے تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. آئی تھنک بائبل کا یہ وہ حصہ ہے جو اکثر ہی کوٹ کیا جاتا ہے. ہم نے یقیناً بہت سے سرمنز اس پہ آلریڈی سن چکے ہیں ہم لوگ. اور جب بھی آخرت کے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے اور ان آیات پہ ضرور بات کی جاتی ہے کہ ان مقدسوں کے نام، ان لوگوں کے نام جن کے کتاب میں نام ہوں گے وہ رہائی پائیں گے. اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے. ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں کہ اہل دانش کون ہیں. جن کے پاس ریولیشن اینڈ وزڈم ہے وہ نیشنز کے لیے تقویت کا باعث بنیں گے، خداوند میں روحوں کو جیتیں گے، ایمان میں مضبوطی کا باعث ہوں گے. جن کے پاس یہ ریولیشن ہوگی، یہ نالج ہوگی، ان آخری دنوں میں زندگیوں اور روحوں کو بچائیں گے. اور اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے مینس کہ وہ اہل دانش جب روحوں کو بچانا ہے، ان کے یہ ساری ایکسرسائز، ان کے سارے ایفرٹس، ان کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے. ظاہر ہے وہ جب ایونجلزم چل رہا ہوگا، وہ نالج شیئر کی جا رہی ہوگی، وزڈم شیئر کی جا رہی ہوگی، تو بہتوں کو ہم ایمان میں مضبوط رکھ سکیں گے، خداوند میں قائم رکھ سکیں گے. صادق ہو گئے، ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے. اور یہ خداوند کی طرف سے پھر ریوارڈ ہوگا ان لوگوں کے لیے. ورس 4. لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے. وہ تیرے اس کی تفتیش اور تحقیق کریں گے اور دانش افزوں ہوگی. لٹرل میننگ تو یہ ہے کہ since you are done with writing all this, now you can close and seal it.
बट ऑब्वियसली ये आखिरी जमाने तक सील नहीं रहना था, बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बनना था, इसीलिए आज हम पढ़ भी रहे हैं इन चीजों को। बट एक्चुअली इस वर्ष का मतलब है कि ये बातें उनके लिए लिखी गई हैं और ये उनके लिए बताई गई हैं, और उस नेशन के लिए जो इसको विटनेस करेगी। सो बेसिकली इट्स फॉर द नेशंस हु विल सी द एंड ऑफ ऑल द थिंग्स. With this information, they can be wise, and if they'll be wise, they'll turn many to Christ. And if they turn many, they will shine like a star. Last part of the verse is कि दानिश अफजू होगी. टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, स्पेस ट्रेवल्स, फ्लाइंग हेयर एंड देयर. एक्चुअली कहा क्या जा रहा है दानियल को कि सील द बुक, देयर विल बी इंक्रीज इन रेवलेशन. क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है बोतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी. हम लोग देख सकते हैं कि आजकल बहुत से चर्च लीडर्स और दुनिया भर में चर्चेज में दुनिया के खादिम जो हैं वो आखिरत को लेके बहुत बात कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बदलते हुए हालात और कंट्रोवर्सी से हम लोग घिरे हुए हैं आजकल, मिस इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं. और अगर उस साइड पे बहुत काम हो रहा है तो खुदावंद में भी बहुत से लोग आजकल रूहों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये बात वही है कि इसकी तफ्तीश और तहकीक करेगी, लोगों में विजडम बढ़ेगी, लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उनके जो है वो जहन खुलेंगे और वो फिर एनालिसिस कर सकेंगे, वो भांप सकेंगे कि क्या गलत है और क्या नहीं. तो ये बातें एक्चुअली उस हवाले से हैं. अगर देखा जाए तो हमारे करियर्स, हमारी प्रोफेशनल लाइव्स, बीइंग पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैटर्स अ लॉट व्हाइल वी आर ऑन दिस प्लैनेट. हम 40 साल, 45 साल में भी 50 साल काम करते हैं, अपने करियर्स में मसरूफ रहते हैं, और देखा जाए तो हम कितने फोकस्ड रहते हैं अपनी इस टेम्पररी लाइफ को दिन ब दिन अच्छा बनाने के लिए. लेकिन जो इटर्नल है उसके बारे में हम लोग कितनी को कोशिश करते हैं, कितना को पढ़ते हैं, कितना को उस चीज़ को समझते हैं, हम अपने आप को जवाब दे सकते हैं. वर्स 5 और 6. फिर मैं दानियल ने नजर की और क्या देखता हूं कि 2 शख्स और खड़े थे, एक दरिया के इस किनारे पर और दूसरा दरिया के उस किनारे पर. और एक ने उस शख्स से जो कितानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है. कौन से अजायब? चैप्टर 11 की वर्स 21, वर्स 31, वर्स 45, चैप्टर 12 की वर्स 1 और 2. सो ये जो सब कुछ हो रहा, मतलब एंटी क्राइस्ट का दुनिया के स्टेज पे आना, उसका फिर फरिश्तों का आ जाना, उस वॉर को एंड कर देना, खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाना, इन सब की मुद्दत क्या है. वर्स 7. और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कितानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हत्ती अल कयूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर और नीम दौर, और जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा. एक दौर और दौर, नीम दौर. इंग्लिश ट्रांसलेशन में इट विल बी फॉर अ टाइम, टाइम्स एंड हाफ अ टाइम, मीनिंग के 3.5 साल. और जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा. तो वही हमने जो पिछली वर्सेस में देखा कि 3.5 साल तक ये पूरी कैंपेन चलनी है, और जब ये मुद्दत पूरी हो चुकी होगी, खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों के साथ आएंगे और इस वॉर को एंड कर देंगे. सो देयर आर 2 आंसर टू दिस क्वेश्चन कि उसकी क्या मुद्दत है. फर्स्ट आंसर इज कि 3.5 साल तक होना है, और दूसरा आंसर इज मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुके होंगे. वर्स 8 और 9. और मैंने सुना पर समझ ना सका, तब मैंने कहा आए मेरे खुदावन, इनका अंजाम क्या होगा. उसने कहा आए दानियल, तो अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंदो सर ब मोहर रहेंगी. मीनिंग कि खुदा डैनियल को कह रहा है कि इट्स नॉट फॉर यू टू नो, जस्ट राइट द इंफॉर्मेशन, बंद कर, सील कर और अपनी राह ले. नॉलेज विल इंक्रीज, बट
your work is done, your part is done, in other words. Verse 10. और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ और बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे, और शरीरों में से कोई ना समझेगा, पर दानिशवर समझेंगे. ये सब मुसीबतें हमें पाक और साफ एक्चुअली कर रही हैं, प्योरीफाई कर रही हैं, रिफाइन कर रही हैं. वर्स 11. और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे. वर्स 31 में भी इसी का जिक्र हम लोगों ने देखा था. उजाड़ने वाली मकरूह चीज जब नस्ब होगी तो 1290 दिन तक चलेगी, 42 मंथ्स या 3.5 साल कह लें. अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये है कि यहाँ 1290 दिन लिखे हैं और मुकाशफा की किताब में 1260 दिन लिखे हैं. सो ये 30 डेज का जो डिफरेंस है ये क्यों है और इसका क्या मतलब है? बाइबल मुकद्दस में इस 30 डेज के डिफरेंस के बारे में एक्चुअली कुछ मेंशन नहीं किया गया और कुछ ऐसे रेफरेंसेस नहीं मिलते कि एक्स्ट्रा 30 डेज एक्चुअली है क्या. लेकिन आई एम गोना स्पेक्युलेट. डिस्क्लेमर, मैं स्पेक्युलेट कर रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस के स्क्रिप्चर्स में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ. लेकिन मेरी सोच के हिसाब से अगर ह्यूमन डायनामिक्स को नजर में रखा जाए और इस चीज को मैथ्यू चैप्टर 25 से कनेक्ट कर दें, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते इसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा. उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास मिलो. सो आई फील कि ये सब चीजें जो होनी है वो एक्चुअली इन 30 डेज में ही होनी है, कि शिकस्त देने के बाद इन चीजों का होगा. इट विल टेक सम टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि खुदा यीशु मसीह की आमद आ गई, मकाइल फरिश्ता आ गया और इब्लीस को और उसकी टीम को खत्म किया जा रहा है और ये सब कुछ एक पहर में ही हो रहा है. उसके बाद भेड़ों को बकरियों को जुदा करना, तख्त पे खुदा यीशु मसीह का बैठना, इट विल टेक सम टाइम. वर्स 12. मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है. ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है कि 45 डेज और ऐड हो गए हैं. पहले 1290 थे, अब 1335 हो गए हैं. वी डोंट नो कि इन एक्स्ट्रा 45 डेज में अब क्या होना है. कुछ ऐसे इशारे एटलीस्ट मैं तो नहीं ढूंढ पाया. अगर स्क्रिप्चर्स में आपको कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं तो प्लीज कमेंट, ताकि हम इन चीज़ों को एक दूसरे से शेयर कर सकें. लेकिन जितना को मैंने स्टडी किया है, इन एक्स्ट्रा 45 डेज में क्या होना है कोई ऐसे जिक्र नहीं है. और लिखा है कि मुबारक है वो जो इंतजार करेगा. सो बाप ने कोई सरप्राइज हमारे लिए रखा हुआ है और ये तभी हमें पता चलेगा. 160th डे, जो 1260वां जो दिन है, दैट वुड बी ग्रेट बिकॉज फाइनल वॉर का एंड हो जाना है, दैट्स फॉर श्योर. रेवलेशन में क्लियरली बता दिया है कि इब्लीस को अथॉरिटी ही सिर्फ 42 मंथ्स तक दी जाएगी. वर्स 13. पर तू अपनी राह ले जब तक कि मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अयाम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा. फिर से डैनियल को कहा जा रहा है कि तू अपनी राह ले. यू हैव बीन अ गुड सोल्जर, योर वर्क इज डन, गो एंड रिलैक्स नाउ. एंड दैट्स द एंड ऑफ द बुक ऑफ डैनियल. All the brutality of the years before coming like a woman in labor who is now holding her child, और वो अपना सब दुख और दर्द भूल चुकी है अपने बेबी को जब फर्स्ट टाइम अपनी गोद में वो लेती है. I believe that is a great metaphor for our emotions that you and I will be feeling जब ये इख्तिताम होगा और हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ दोबारा से उसके साथ होंगे. I hope it was encouraging. Please share it with your friends and family. Take good care. God be with you. Amen.